وزیر اعظم عمران خان کی اسلام آباد میں مسلم دنیا کے سفیروں سے ملاقات، اسلاموفوبیا سے نمٹنے کے لیے تعمیری تجاویز پیش کرنے کی دعوت، رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتھارٹی مسلم امہ کو درپیش چیلنجز سے نمٹنے کے لیے مسلم اسکالرز سے رہنمائی لے گی۔ مسلمان ملکوں کی سفیروں کی وزیر اعظم عمران خان کو عالمی فورم پر بھرپور حمایت کی یقین دہانی۔ پاکستانی ادب کے عظیم تخلیق کاروں کی شاہکار ادبی خدمات اور ورثے کو محفوظ بنانے کے لیے اکادمی ادبیات میں ایوان اعزاز قائم۔ حکومت اسکالرز اور رائٹرز کی خدمات کی بھرپور پذیرائی کرے گی۔ اہل علم و قلم معاشرے میں اچھائی اور برائی کے درمیان تمیز کو اجاگر کرنے کے لیے نئی نسل کو اخلاقیات کا درس دیں۔ وزیر اعظم عمران خان۔ صدر مملکت کو خیبر پختونخوا حکومت کی کارکردگی اور ترقیاتی سرگرمیوں پر تفصیلی بریفنگ۔ ضم شدہ اضلاع میں تعلیم، صحت، مواصلات، توانائی اور انتظامی ڈھانچے کو بہتر بنایا گیا ہے۔ خواتین اور نوجوان کامیاب جوان پروگرام اور انصاف روزگار اسکیم سے استفادہ کریں۔ صدر ڈاکٹر عارف الوی۔ سعودی عرب کی طرف سے پاکستان میں شاہ سلمان ونٹر ریلیف پروجیکٹ کا آغاز، 2,90,000 غریب افراد مستفید ہوں گے۔ پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان مشترکہ عقیدے پر قائم سیاسی، معاشی اور تصویراتی تعلقات کو عالمی سطح پر اہم حیثیت حاصل ہے۔ وزیر اطلاعات چودھری فواد حسین۔ صدر ڈاکٹر عارف الوی نے قومی اسمبلی اور سینٹ کے اجلاس طلب کر لیے۔ سیشن کل صبح 10:30 بجے پارلیمنٹ ہاؤس اسلام آباد میں ہوں گے۔ امریکہ اور اس کے اتحادی افغانستان کے منجمد اثاثے بحال کرے، بیرونی امداد کے بغیر عوام کا معیار زندگی بلند کریں گے۔ افغان وزیر خارجہ امیر خان متقی کی پناہ گزینوں کے لیے اقوام متحدہ کے ڈائریکٹر جنرل سے گفتگو۔ ایف اے ٹی ایف نے پاکستان کی کارکردگی کا اعتراف کیا۔ بعض ممالک فورم کا سیاسی بنیادوں پر استعمال کر رہے ہیں، اپنی ذمہ داریاں پوری کرنے کے لیے پرعزم ہیں۔ ترجمان دفتر خارجہ کی بریفنگ۔ ہندو برادری مذہبی تہوار دیوالی منا رہی ہے۔ صدر ڈاکٹر عارف الوی، وزیر اعظم عمران خان اور سیاسی قیادت کی مبارکباد۔ پاکستان میں ہندوؤں کو تمام آئینی حقوق اور مذہبی آزادی حاصل ہے۔ روشنی اور رنگوں کے تہوار پر ہم سب کو مل کر پاکستان کے روشن مستقبل کے لیے ٹھوس عزم کرنا ہوگا۔ ملک کی ترقی کے لیے ہندو برادری کی گراں قدر خدمات کا اعتراف کرتے ہیں۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کا مٹھی میں جلسے سے خطاب۔ الیکشن کمیشن کا خیبر پختونخوا میں بلدیاتی انتخابات کا اعلان۔ 17 اضلاع میں پولنگ 19 دسمبر کو ہوگی۔ الیکشن کمیشن نے پشاور ہائی کورٹ کے فیصلے پر کاغذات نامزدگی جمع کرانے کا وقت بڑھا دیا۔ امیدوار اب 10 نومبر تک اپنے کاغذات نامزدگی جمع کرا سکیں گے۔ حق خود ارادیت کے لیے پرعزم کشمیر کے سپوت ہفتے کے روز یوم شہدائے جموں منائیں گے۔ گلاسکو میں فیشسٹ نریندر مودی کی موجودگی کے دوران کشمیریوں اور سکھوں کا بڑا احتجاج۔ مسلمانوں کی نسل کشی بند کرو، کشمیر پر ناجائز قبضہ ختم کرو، سیاسی قیدی رہا کرو کے پرزور نعرے۔ خالصتان ریفرنڈم سے گھبرائے، مودی ذلت کے گھڑے سے نکلنے کے لیے برطانوی ہم منصب سے مدد مانگنے پر مجبور۔ دبئی میں T20 ورلڈ کپ، آسٹریلیا نے بنگلہ دیش کو 8 وکٹوں سے شکست دے کر پوائنٹس ٹیبل پر دوسری پوزیشن حاصل کر لی۔ بنگلہ دیشی ٹیم 15 اوورز میں 73 رنز پر ڈھیر ہو گئی۔ ایڈم زمپا کی 5 وکٹیں، آسٹریلیا نے ہدف 7ویں اوور میں 2 وکٹوں پر حاصل کیا۔ And that one's been crunched straight down the ground. Comes to your timing. Oh yeah, huge, fabulous pull stroke. And the match is won with the most dramatic of strokes. That is a spark. ابوظہبی میں ایونٹ کے 35ویں میچ میں سری لنکا کا ویسٹ انڈیز کو 190 رنز کا ہدف، اسالنکا کے 68 اور نسانکا کے 51 رنز۔ مقابلہ دیکھیے پی ٹی وی سپورٹس پر براہ راست۔ اور
پر شائقین کرکٹ کے لیے خوشخبری، ویسٹ انڈیز کرکٹ ٹیم 3 T20 اور 3 ون ڈے میچز کھیلنے اگلے ماہ پاکستان کا دورہ کرے گی۔ تمام میچز 13 سے 22 دسمبر تک نیشنل اسٹیڈیم کراچی میں کھیلے جائیں گے۔ اپریل 2018 کے بعد یہ ویسٹ انڈیز کا پہلا دورہ پاکستان ہوگا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ پاکستان ٹیلی ویژن نیوز کے اسلام آباد اسٹوڈیو سے آپ دیکھ رہے ہیں شب 9 بجے کا خبرنامہ، اور میں ہوں مناظر حسین۔ میں ہوں نازیہ خان۔ اور سپورٹس نیوز کے لیے میں آپ کے ساتھ ہوں گا محمد انیس۔ نیوز ہیڈ لائنز آپ ملاحظہ کر چکے ہیں، خبروں کی تفصیل آپ ملاحظہ کر سکیں گے اس بریک کے بعد۔ ہمارے ساتھ رہیے گا۔ بے روزگاری کے خاتمے کے لیے عملی قدم، حکومت پنجاب کی جانب سے میرٹ اور شفافیت کی بنیاد پر 1 لاکھ سرکاری نوکریاں۔ تفصیلات کے لیے اخبارات ملاحظہ کریں۔ موبائل پر 25,000 کا ڈسکاؤنٹ، فریج پہ 15,000 کی بچت، فیشن برانڈز پر فلیش سیل۔ جلدی سے ایڈ ٹو کارٹ کریں اور 11 نومبر سے انجوائے کریں۔ دراز 11/11، بڑی سیل کی بڑی بچت۔ ویلکم بیک، اور اب تفصیلی خبریں۔ سب سے پہلے آپ کو آگاہ کریں گے کہ وزیر اعظم عمران خان نے واضح کیا ہے کہ رحمت للعالمین اتھارٹی کے قیام کا بنیادی مقصد باہمی تحقیق کے ذریعے سنت کی گہرائی سے فہم کو فروغ دینا اور سوشل اور ڈیجیٹل میڈیا کے دور میں نوجوانوں کو اپنے اسلامی تشخص، اقدار اور ثقافت کے تحفظ کے لیے ماحول فراہم کرنا ہے۔ انہوں نے یہ بات اسلام آباد میں مسلمان ممالک کے سفیروں کے ساتھ ایک انٹر-ایکٹیو سیشن کے دوران کہی، جس میں انہوں نے رحمت للعالمین اتھارٹی کے قیام کے تصور اور ویژن کا خاکہ پیش کیا۔ انہوں نے کہا کہ رحمت للعالمین اتھارٹی کو مسلم نوجوانوں کو درپیش عصری مسائل پر تبادلہ خیال کرنے اور جدید چیلنجز بالخصوص اسلاموفوبیا کے حوالے سے مربوط اور منطقی فکری جواب پیش کرنے کے لیے دنیا بھر کے اسلامی اسکالرز کے ساتھ رابطہ قائم کرنے کا پابند بنایا گیا ہے۔ وزیر اعظم عمران خان نے اسکولوں میں اخلاقیات کی تعلیم پر زور دیا تاکہ مسلمان نوجوانوں کی کردار سازی اصولوں اور اسلام کی حقیقی روح کے مطابق ہو سکے۔ وزیر اعظم نے پرنٹ، ڈیجیٹل اور الیکٹرانک میڈیا کے کردار کی اہمیت اور نوجوان نسل کے طرز زندگی اور شخصیت کی نشو و نما پر ان کے مواد کے اثرات پر بھی روشنی ڈالی۔ وزیر اعظم نے اسلام کے آفاقی پیغام کی اپیل اور ریاست مدینہ کے بنیادی اصولوں، عدل، قانون کی حکمرانی، عوام کی فلاح و بہبود اور علم کے حصول پر غیر متزلزل توجہ پر عمل کرنے پر زور دیا۔ وزیر اعظم نے کہا کہ حقیقی سماجی بہبود اور ترقی کے لیے مسلمان اپنی روزمرہ زندگیوں میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی اور تعلیمات کو پوری طرح سمجھیں اور ان کی تقلید کریں۔ سیشن کے دوران وزیر اعظم عمران خان نے سفیروں کو اس سلسلے میں تجاویز دینے کی دعوت دی اور توقع ظاہر کی کہ مسلمان ممالک کے درمیان حکومتی سطح کے ساتھ ساتھ علماء اور اکیڈمی کے درمیان بات چیت کے ذریعے تعاون کو فروغ ملے گا۔ مسلمان ممالک کے سفیروں نے وزیر اعظم کے اس اقدام کو سراہا اور ہر عالمی فورم پر امت مسلمہ کے مقاصد کے لیے ان کی بھرپور حمایت کا اعتراف کرتے ہوئے ہر ممکن تعاون کا یقین دلایا۔ ناظرین، وزیر اعظم عمران خان نے اسکالرز، ادیبوں اور مصنفین پر زور دیا ہے کہ وہ معاشرے میں اچھائی اور برائی کے درمیان تمیز کو اجاگر کر کے بچوں اور نوجوان نسل کو اخلاقیات کا درس دیں۔ وزیر اعظم نے یہ بات اسلام آباد میں اکادمی ادبیات کے تحت ایوان اعزاز کے افتتاح کے موقع پر کہی۔ تفصیل جانتے ہیں اکرام اللہ محسود سے۔ وزیر اعظم عمران خان نے قومی ورثہ اور ثقافت کے ڈویژن کے ماتحت ادارے اکادمی ادبیات پاکستان میں ایوان اعزاز کا افتتاح کیا۔ اس شعبے کے قیام کا مقصد پاکستانی ادب کے عظیم تخلیق کاروں کی شاہکار ادبی خدمات اور ورثے کو محفوظ بنانا ہے۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعظم نے کہا کہ ہم ملک میں ادیبوں، دانشوروں اور اسکالرز کی کاوشوں اور خدمات کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں اور انہیں نئے پاکستان کا حصہ سمجھتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اسلامی معاشرے میں استاد اور عالم کو انتہائی اہمیت حاصل ہے۔ حکومت اسکالرز اور رائٹر کی خدمات کی بھرپور پذیرائی کرے گی۔ اسکالرز ڈائریکشن دیتے ہیں، قبلہ درست کرتے ہیں۔ اگر اسکالرز صحیح راستے پہ سویلائزیشن کو رکھیں تو اس کا زوال نہ آئے۔ الجیرین فریڈم فائٹر تھا، اس کا نام تھا بومدین، وہ کہتا میں ایک اقبال کے شعر سے مسلمان ہوا ہوں۔ اور آج کے پاکستان میں اسکالرز کی بہت ضرورت ہے۔ اس ملک میں ہمارے اسکالرز کی، ہمارے فلم ٹی وی پروڈیوسرز کی بہت زیادہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ اب
अपनी यंगर जनरेशन के लिए हम अपने बच्चों को उनकी तरबियत कर सकते हैं। वज़ीर आज़म ने कहा कि मदीने की रियासत का क़याम तलवार की बजाय फिक्री इनकलाब से आया था। हमारी नौजवान नस्ल को इस फिक्री इनकलाब से आगाही फराहम करना वक्त की जरूरत है। उन्होंने कहा कि रियासत मदीना की बुनियाद अच्छाई और बुराई में तमीज समेत सुनहरी उसूलों पर उस्तवार थी। पाकिस्तान में दो खानदानों ने अरबों की करप्शन करके अच्छाई और बुराई में तमीज खत्म कर दी। हमारी जो मोरालिटी, जो एथिक्स हैं, वो बड़ी बुरी तरह नीचे गिरे हैं। जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनकलाब लेके आए, ये जो फिक्री इनकलाब आया था, उसका बेस पहले था मोरालिटी के ऊपर। अच्छाई को उठाओ और बुराई को कंडेम करो। मुझे कहते हैं जी वो अपोजिशन लीडर है, आप उसे हाथ नहीं मिलाते। मैं उसके ऊपर हाथ मिलाता हूं तो मैं एक्सेप्ट करवा देता हूं माशरे में कि बुरी चीज ही नहीं है ये। आप जब बुरे को बुरा नहीं कहते और उसको एक्सेप्ट कर जाते तो इसका मतलब कि आपका जवाल शुरू हो गया। तालीम और सकाफती विरसे के वजीर शफकत महमूद ने कहा कि जो अफकार और तखयलात दानिश्वरों और अदीबों की तख्लीक की जीनत बनते हैं, उन पर अमल पैरा होकर ही कौमों को रोशनी मिलती है। अकादमी अदबियात के चेयरमैन डॉक्टर यूसुफ खुश्क ने कहा कि उनका इदारा अदबी काम के हवाले से न सिर्फ अंदरूनी मुल्क बल्कि कई दूसरे मुल्कों के साथ सफारती सतह पर अदबी रवाबित भी कायम रखे हुए है। उन्होंने बताया कि आइंदा बरस अदबी म्यूजियम का भी इफ्तिताह किया जा रहा है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने इस मौके पर ऐवान एजाज में अजीम अदीबों, शायरों और मुफक्किरीन की आवेजा की गई पोर्ट्रेट भी देखी और उनकी खिदमात और कावशों को खराजे अकीदत पेश किया। अकादमी अदबियात की जानिब से पाकिस्तानी अदब के अजीम तख्लीबकारों की अदबी खिदमात के एतराफ़ में ऐवान एजाज के क़ियाम का मकसद अहले कलम को खराजे अकीदत पेश करने के साथ अदबी विरसे को भी महफूज बनाना है। इकरामुल्लाह महसूद, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा है कि हुकूमत ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस पॉलिसी के तहत गैर मुल्की सरमायाकारों को हर मुमकिन सहूलियात फराहम कर रही है। इस्लामाबाद में मुशीर खजाना शौकत फयाज तरीन और मुशीर तिजारत अब्दुल रज़ाक दाऊद से गुफ्तगू करते हुए वज़ीर आज़म ने खित्ते के ममालिक के साथ तिजारती रवाबित मुस्तहकम करने पर जोर दिया, जिससे बरामदात बढ़ाने में मदद मिलेगी। मुशीर खजाना ने वज़ीर आज़म को मुल्क की मजमूई मौशी सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी। मुशीर तिजारत ने अपने हालिया दौरे तुर्कमानिस्तान और मुतवक्के ईरान दौरे के हवाले से भी वज़ीर आज़म को आगाह किया। वज़ीर आज़म इमरान खान से मुआविन खुसूसी सरदार यार मोहम्मद रिन ने इस्लामाबाद में मुलाकात की। मुलाकात में PTI बलूचिस्तान के उमूर और तरक्याती मनसूबों के हवाले से तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर आज़म इमरान खान से वफाकी टैक्स मुहतसिब डॉक्टर आसिफ महमूद जहाँ ने मुलाकात के दौरान टैक्स मुहतसिब के उमूर के बारे में ब्रीफ किया। वज़ीर आज़म ने कहा कि टैक्स की रिकॉर्ड वसूलियाँ खुशाइंद है। वज़ीर आज़म ने टैक्स मुहतसिब को टैक्स गुजारों के मसाइल हल करने पर भरपूर तवज्जो देने की हिदायत की। सदर डॉक्टर आरिफ अलवी कहते हैं कि कामयाब जवान प्रोग्राम, इंसाफ रोज़गार स्कीम जैसे मंसूबों से मुस्तफ़ीद होने के लिए नौजवानों और ख़ातीन को रहनुमाई फराहम करने की ज़रूरत है। पेशावर में खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की कारकर्दगी और सूबे में जारी तरक्याती सरगर्मियों के हवाले से इजलास की सदारत के मौके पर खिताब में सदर ममलिकत ने कहा कि हुकूमत की कर्जा स्कीमें नौजवानों के लिए रोज़गार के मौक़े पैदा करने के साथ साथ उन्हें अपने कारोबार कायम करने के काबिल बनाएगी। सूबाई हुकूमतें चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के साथ मिलकर नौजवानों में हुकूमत की कर्ज स्कीमों के बारे में शऊर उजागर करें। इस मौके पर सदर मुमलिकत को हुकूमती कारकर्दगी से मुतालिक तफसीली ब्रीफिंग दी गई। उन्हें बताया गया कि सूबाई हुकूमत साबिका फाटा के नए जमशुदा अजला की तरक्की और बेहतरी पर खुसूसी तवज्जो दे रही है। साबिका फाटा अजला का खैबर पख्तूनख्वा में इंतजामी इंतजाम मुकम्मल हो चुका है। जमशुदा अजला के लिए 491 अरब रुपए मालियत के 901 मनसूबे मंजूर किए गए हैं। इजलास में जम अजला में तालीम, सेहत, सड़कों, तवानाई और इंतजामी इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर बनाने के मंसूबों पर पेशरफ्त का भी जायजा लिया गया और इस अज़्म का अयादा किया गया कि सूबे में जारी तमाम तरक्याती मंसूबे मुकर्ररा वक्त के मुताबिक मुकम्मल हो जाएंगे। सदर डॉक्टर आरिफ अलवी से गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा शाह फरमान ने पेशावर में मुलाकात की। मुलाकात में कबायली अजला के तरक्याती और आवाम की फलाह बहबूद से मुतल्लिक हुकूमती उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। इस मौके पर सूबे के आला तालीमी इदारों में इंतजामी और माली इस्लाहात पर भी बातचीत हुई। वज़ीर आला महमूद खान ने भी सदर डॉक्टर आरिफ अलवी से मुलाकात की। मुलाकात में सूबे में अमन व अमान, अवामी फलाह बहबूद के इक़दामात और इस्लाहाती अमल समेत दीगर उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। इससे पहले सदर मुमलिकत के वज़ीर आला हाउस पहुँचने पर वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा और सूबाई काबीना के अरकान ने उनका इस्तकबाल किया।
सदर डॉक्टर आरिफ अलवी ने कौमी असम्बली और सेनेट के इजलास तलब कर लिए हैं। दोनों ऐवानों के सेशन कल सुबह 10:30 बजे पार्लियामेंट हाउस में होंगे। हिंदू बरादरी रोशनियों और रंगों का मजहबी त्यौहार दिवाली मना रही है। सदर डॉक्टर आरिफ अलवी और वज़ीर आज़म इमरान खान ने हिंदू बरादरी को दिवाली के त्यौहार की मुबारकबाद दी। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में हिंदुओं को तमाम आईनी हुकूक और मजहबी आज़ादी हासिल है। रोशनी और रंगों के त्यौहार पर हम सबको मिलकर पाकिस्तान के रोशन मुस्तकबिल का ठोस अज़्म करना होगा। चेयरमैन सेनेट मोहम्मद सादिक संजरानी, डेप्यूटी चेयरमैन मिर्ज़ा मोहम्मद आफरीदी और वज़ीर आला बलूचिस्तान मीर अब्दुल कुद्दूस बिज़ंजो ने भी हिंदू बरादरी को दिवाली की मुबारकबाद दी। उन्होंने कहा कि हम सबको मिलकर पाकिस्तान के ताबनाक मुस्तकबिल के लिए एक दूसरे की जिंदगी में खुशियों के रंग भरने होंगे। वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी कहते हैं कि मुल्क में रहने वाले हिंदू बरादरी के हुकूक और मजहबी आज़ादी का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। पाकिस्तान में बसने वाले हिंदुओं को हर किस्म की मजहबी आज़ादी हासिल है। वो दिवाली के मौके पर मिट्टी में एक बड़े जलसे से खिताब कर रहे थे। तफसील बताएंगे शिराज अली डाहरी। दिवाली के मौके पर मिट्टी में हिंदू कम्युनिटी से इज़हार यकजहती के लिए पीटीआई क़यादत थरपार कर पहुंची। जलसे से खिताब करते हुए वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि दुनिया को पैगाम देने आए हैं कि पाकिस्तान में कायदे आज़म की सोच और फ़लसफ़े पर अमल हो रहा है। काश ये हौसला जो आज पाकिस्तान की हुकूमत में है, ये अज़्म जो आज इमरान खान की सोच की अक्कासी करता है, काश बीजेपी की सफों में भी कुछ लोग ऐसे होते जिनमें इतना हौसला होता, इतनी हिम्मत होती कि जो मकबूजा कश्मीर के निहत्थे मुसलमानों के साथ जुल्म हो रहा है, जुल्म के खिलाफ आवाज उठाते। वज़ीर ख़ारिजा ने कहा कि इमरान खान ने थरपार करके लोगों को सेहत कार्ड दिया। वफाकी हुकूमत दूसरे तरक्याती काम भी करवा रही है, लेकिन सिंध हुकूमत की अदम तवज्जो की वजह से सिंध की आवाम सख्त मुश्किलात में है। इमरान खान साहब ने फैसला किया कि सिंध में सेहत कार्ड का इजरा थर पार्कर से होगा और हमने कोई तमीज नहीं की। जो हकदार था उसको सेहत कार्ड दिया गया, चाहे उसका किसी जमात से ताल्लुक क्यों ना हो। जलसे से सिंध असेंबली में अपोजिशन लीडर हलीम आदिल शेख, पीटीआई के रहनुमा डॉक्टर रमेश लाल, अरबाब अनवर, जयप्रकाश, लाल माली और लजपत राय सुरानी ने भी खिताब किया और कहा कि हिंदू कम्युनिटी पीटीआई की भरपूर हिमायत करती है। दिवाली के मौके पर मिट्टी में हिंदू कम्युनिटी से वाबस्ता अफराद ने बड़ी तादाद में जलसे में शिरकत की। शिराज अली डायरी, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, मिट्टी, थरपारकर। नासिर मुल्क भर की तरह सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर में भी हिंदू बिरादरी अपना मजहबी त्यौहार दिवाली जोशो जज्बे के साथ मना रही है। लाहौर कृष्णा मंदिर में इस वक्त मेले का समा है। हमारे नुमाइंदे नवीद हयात इस वक्त वहाँ मौजूद हैं, उनसे हम मज़ीद तफसीलात जानते हैं। नवीद हयात, कहिएगा कि दिवाली के हवाले से कैसा जोशो खरोश है और मजमूई तौर पर कैसी सजावट देखने में आ रही है घरों की, मंदिरों की? जी बिल्कुल, मुल्क भर की तरह पाकिस्तान भर में भी जो है हिंदू बरादरी अपना जो त्यौहार है दिवाली वो बड़े जोशो खरोश से मना रही है। इस हवाले से जो कृष्णा मंदिर लाहौर है, इसमें कृष्णा मंदिर लाहौर में एक मरकज़ी तकरीब का इनेकाद किया गया था आज, जिसमें हिंदू बरादरी की जो बड़ी तादाद है उसने शिरकत की थी। इस बरादरी ने शिरकत तो की, इसके बाद उन्होंने अपनी जो है वह पूजा पाठ की और उसके बाद आतिशबाजी का समा पेश आया। उसके बाद अब बहुत बड़ी तादाद इस वक्त मंदिर में मौजूद है। इस वक्त हमारे साथ जो मंदिर के पंडित हैं काशीराम, वो हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे जानते हैं कि वो दिवाली को, इस इवेंट को किस तरह मना रहे हैं और क्या पैगाम देना चाहेंगे इस बारे में। देखो जी, आज हमारे खुशी का दिन है। तमाम बहन भाई आज हमारे साथ शरीक हैं, तमाम मज़हब के लोग, तो हमें बहुत खुशी महसूस हो रही है और पाकिस्तान हमारा महफूज घर है। जैसा कि नफ़ी सोच रहे हैं हमारे पाकिस्तान के बारे में, ऐसा नहीं है। पाकिस्तान हमारा घर है और आज का जितना जो इंतज़ामात है, हमारे चेयरमैन साहब डॉक्टर खालिद साहब और अपना डॉक्टर राना शाहिद साहब ने जितने इंतज़ाम किया है, तो हमें बहुत खुशी है, मुतमईन है अपने पूरे पाकिस्तान में जितने इंतज़ामात हैं आज हुए हैं,
तो पाकिस्तान हमारा घर है और मैं यही प्रार्थना करता हूँ कि भगवान हमारे पाकिस्तान को कायद शायद रखे। पाकिस्तान जिंदाबाद। जी बिल्कुल, आपने पंडित काशीराम जो इस कृष्णा मंदिर के पंडित हैं उनकी बात सुनी ही कि पाकिस्तान में तमाम अक़लियतों को मुकम्मल मजहबी आज़ादी हासिल है और तमाम अक़लियत पाकिस्तान में तमाम अक़लियतों को मुकम्मल मजहबी आज़ादी हासिल है। पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा भी उन्होंने लगाया। बहुत शुक्रिया नवीद हयात आपका हमें कृष्णा मंदिर में दिवाली के अहवाल और जोश व खरोश से तफसीलन आगाह करने के लिए। रुख करेंगे कोयटा का। मुल्क भर की तरह कोयटा समेत बलूचिस्तान भर में हिंदू बरादरी दिवाली का त्यौहार जोशो जज्बे से मना रही है। दिवाली की मुनासबत से मस्जिद रोड पर आर्या समाज, शाविक्शा रोड पर कृष्णा मंदिर, डॉक्टर बानो पर खाना मुसाफिर मंदिर और जिना रोड पर बाता मंदिर सजा दिए गए हैं। कोयटा में हमारे नुमाइंदे वकार अहमद आर्या समाज मंदिर पर मौजूद है। मजीद तफसील उन्हीं से जान लेते हैं। जी वकार, दिवाली की तकरीबात के हवाले से बताइएगा, क्या अहवाल है वहाँ का? आज हम कोयटा के मस्जिद रोड पर वाक़ कदीमी आर्या समाज मंदिर पहुँचे हैं और यहाँ पर दिवाली की मुनासिबत से सुबह से ही पूजा और दुआओं और इबादतों का सिलसिला जारी है। And I love the lighting and everything. And I think what I heard about it, it's like light against darkness, evil that has to be vanished by the goodness. Happy Diwali! दिवाली की इन तकरीबात के हवाले से अगर हम देखें तो पाकिस्तान में एक बहुत बड़ी तादाद है हिंदू बरादरी की जो सिंध, पंजाब, बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में बसते हैं। इन इबादतों में शामिल होने के लिए जो हिंदू बरादरी के लोग हैं वो बहुत बड़ी तादाद में यहाँ पर पहुँचना शुरू हो गए और आज के दिन खुसूसी तौर पर मिठाइयाँ भी तैयार की जा रही हैं और लोगों को इसके अलावा दावत भी दी जा रही है जो मुख्तलिफ मज़ाहिब से ताल्लुक़ रखते हैं, जिसमें क्रिश्चियन और मुस्लिम कम्यूनिटी के लोग भी हैं, कि वो इस दिवाली के त्यौहार में खुसूसी तौर पर हिंदू बरादरी के साथ शामिल हों। जी बहुत शुक्रिया वकार अहमद, हमें कोयटा से अपडेट्स दे रहे थे। कुछ रुख करते हैं, कुछ बात करते हैं मुल्तान का। तो मुल्क के दीगर हिस्सों की तरह वहाँ पर भी रिहाइश पजीर हिंदू बरादरी ने दिवाली का त्यौहार जोश व जज्बे के साथ मनाया। इसी बारे में मजीद तफसील से आगाह कर रहे हैं जफरुल्लाह खान। मुल्तान में डबल फाटक चौक, कैंट, गुलशनाबाद और लोधी कॉलोनी के मंदिरों में हिंदू बरादरी जश्न मनाने में मसरूफ है। मैं पूरे पाकिस्तान को और पूरी दुनिया को हैप्पी दिवाली कहना चाहता हूँ। हमारे लिए बहुत बड़ा दिन है ये, मगर उससे बड़ा दिन ये होगा कि हमारी टीम वर्ल्ड कप लेके आए। हिंदू बरादरी के रिहायशी इलाकों में घरों पर चरागा किया गया है। पूजा पाठ के बाद मंदिरों में मुल्को मिल्लत की सलामती और हिंदुस्तान के गैर कानूनी जेर कब्जा जम्मू कश्मीर की भारतीय तसल्लुत से आज़ादी के लिए दुआएं की गयी। जफरुल्लाह खान, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज, मुल्तान। खबरों का सिलसिला जारी है, लेकिन यहाँ पर ले रहे हैं एक ब्रेक। हमारे साथ रहिए। MCB वन करंट अकाउंट, सारे बैंक अकाउंट्स की सहूलियात एक अकाउंट में, जैसे फ्री डेबिट कार्ड, फ्री चेक बुक, फ्री मोबाइल एंड इंटरनेट बैंकिंग, फ्री बैंकर्स चेक, फ्री SMS अलर्ट्स और बहुत कुछ। MCB वन करंट अकाउंट, हर पाकिस्तानी का एक अकाउंट। MCB, बैंक फॉर लाइफ। मेरी बेडशीट, मेरे कपड़े, मेरी क्रॉकरी और मेरे घर का सामान कहाँ से मिलेगा मुझे हर चीज पे डिस्काउंट? दराज पे, वो भी 11/11 पे, 11 नवंबर से। तो फिर अभी ऐड टू कार्ट करें। दराज 11/11, बड़ी सेल की बड़ी बचत। वेलकम बैक। मजीद खबरों का रुख करेंगे। यहाँ आपको बताएंगे कि इस्लामाबाद में फाटा के मसाइल से मुतालिक वर्किंग ग्रुप के इजलास से खिताब करते हुए स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर ने कहा कि फाटा के लिए NFC अवार्ड में किए गए वादों की तकमील के लिए वज़ीर आज़म और दूसरी सियासी जमातों से मुशावरत की जाएगी। फाटा में हथियार की बजाय कलम के फ़रोग़ और पायदार अमन के ख्वाहां हैं। वज़ीर मज़हबी उमूर नूरुल हक कादरी ने कहा कि फ़रीक़ैन की सारी तजावीज़ रिकॉर्ड पर है। मज़ीद तजावीज़ कमेटी को तहरीरी तौर पर दी जा सकती हैं। मुआविन ख़ुसूसी अरबाब शहजाद ने कहा कि फाटा के मसाइल का हल कौमी मामला है, सबको मिलकर हल करना चाहिए। वर्किंग ग्रुप इजलास से पार्लियामेंटेरियन, सहाफ़ियों और सियासी कारकुनान ने भी इलाके के मसाइल पर अपनी तजावीज़ पेश की। जनूबी एशिया ताल्लुकात के लिए यूरोपीय यूनियन के वफ़द ने इस्लामाबाद में स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर से मुलाकात की। मुलाकात में दो तरफ़ा ताउन और अहम इलाकाई और आलमी उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। वफ़द से गुफ्तगू करते हुए स्पीकर ने कहा कि पाकिस्तान खित्ते में पायदार अमन और तरक्की का ख्वाहां है और यूरोपीय यूनियन के साथ पार्लिमानी राबितों को फ़रोग़ देना चाहता है। वफ़द के अरकान ने कहा कि खित्ते में क़याम अमन के लिए पाकिस्तान का किरदार काबिल सताइश है।
वज़ीर इत्तलात चौधरी फवाद हुसैन ने कहा है कि सऊदी अरब और पाकिस्तान के दरमियान मुश्तरका अक़ीदे पर मबनी सियासी, माशी और तज़वीराती ताल्लुक़ात कायम हैं। आलमी सतह पर इन ताल्लुक़ात को अहम हैसियत हासिल है। इस्लामाबाद में सऊदी सफारत खाने में किंग सलमान ह्यूमैनिटेरियन एड एंड रिलीफ सेंटर की तरफ से विंटर रिलीफ प्रोजेक्ट की इफ्ताही तकरीब से खिताब करते हुए वफाकी वज़ीर ने कहा कि शाह सलमान रिलीफ फंड के जरिए फलाही काम काबिल तहसीन हैं। इस प्रोजेक्ट से गरीब तबका मुस्तफ़ीद होगा। वज़ीर इत्तलात चौधरी फवाद हुसैन ने कहा कि पाकिस्तान और सऊदी अरब के ताल्लुक़ात अशरों पुराने हैं और वक्त के साथ साथ ये ताल्लुक़ात नई जहत इख्तियार कर रहे हैं। वाज़ेह है कि किंग सलमान ह्यूमैनिटेरियन एड एंड रिलीफ सेंटर की जानिब से विंटर रिलीफ प्रोजेक्ट का आगाज़ किया गया है, जिसके तहत पसमानदा इलाकों के अवाम में 29,000 किट्स तकसीम की जाएंगी। इस प्रोजेक्ट से 2,90,000 गरीब अफराद मुस्तफ़ीद होंगे। नाज़रीन, इस्लामाबाद में फिंका माइक्रो फाइनेंस बैंक के ज़रिए तमाम तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर इत्तलात चौधरी फवाद हुसैन ने कहा कि कारोबारी ख़वातीन मुल्क की तरक्की में अहम किरदार अदा कर सकती हैं। मौशी सरगर्मियों में ख़वातीन की शिरकत के बगैर मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। उन्होंने कहा कि देहात की निस्बत शहरों में महंगाई का मसला ज़्यादा है। 11 खरब रुपए देही मईशत में मुंतकिल हुए, जिसकी वजह से आज देहात में लोग ज़्यादा खुशहाल हैं। वफाकी वज़ीर ने कहा कि ख़वातीन हमारी आबादी का 50% हिस्सा हैं। अगर आबादी का एक बड़ा हिस्सा काम नहीं करेगा तो मुल्क आगे नहीं बढ़ सकता। वज़ीर इत्तलात ने कहा कि नए एहसास प्रोग्राम में 5 लाख रुपए तक के कर्जे दस्तयाब हैं। ख़वातीन अपना कारोबार कायम करें, कारोबार होंगे तो रोजगार के मौके भी पैदा होंगे। नाज़रीन, जिक्र करेंगे अफगानिस्तान का, तो आपको बताएं अफगान वज़ीर ख़ारजा अमीर खान मुत्तकी ने इमदाद फराहम करने वाले आलमी इदारों का शुक्रिया अदा करते हुए कहा है कि वो अमरीका और उसके इत्तेहादी ममालिक की जानिब से अफगानिस्तान के मुंजमद किए गए असासे बहाल कराने में अपना किरदार अदा करें ताकि हुकूमत किसी भी बैरूनी इमदाद के बगैर अपने अवाम का मयार ज़िंदगी बुलंद कर सके। वो पनाह गज़ीनों के लिए अक़वाम मुत्तहिदा के इदारे UNCHR के डायरेक्टर जनरल एंटोनियो वेट्रिनो से बातचीत कर रहे थे, जिन्होंने वफ़द के हमराह काबुल में उनसे मुलाकात की। अफ़गान हुकूमत के तर्जुमान ज़बीहुल्लाह मुजाहिद के मुताबिक एंटोनियो वेट्रिनो का कहना था कि आलमी बरादरी को अफ़गानिस्तान में लोगों की मुश्किलात का अंदाज़ा है और इससे निपटने के लिए हर मुमकिन कोशिश की जाएगी। उन्होंने बताया कि अफ़गानिस्तान में मौसम सरमा के आगाज़ से कबल बड़ी तादाद में शेल्टर, मलबूसात और दूसरी ज़रूरी अशिया फराहम की जाएंगी। वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद ने कहा है कि हुकूमत अपनी आइनी मुद्दत पूरी करेगी और आइंदा इंतखाबात जीतने के लिए भी भरपूर मेहनत करेंगे। वो लाहौर में पाकिस्तान रेस्क्यू टीम की दूसरी सालगिरह की तकरीब से खिताब कर रहे थे। तफसील जानते हैं आसिम नज़ीर भट्टी से। वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद ने कहा कि वो वज़ीर आज़म के साथ हैं और रहेंगे। उन्होंने कहा कि कालादम तंजीम के मुजाहिरीन का मामला खुश उसलूबी से तय होना पूरी कौम की जीत है। मुझे ये पता है कि इमरान खान साहब 5 साल पूरे करेंगे और अगले इलेक्शन में भी इंशाल्लाह हम पूरी कोशिश करेंगे। फैसला, इज्जतें, तरक्कियाँ ये अल्लाह के कब्जे में है। 5 साल इमरान खान मेरी दुआ भी है और उसी के साथ खड़ा हूँ। वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद ने कहा कि यह पाकिस्तान के लिए बड़े एजाज़ की बात है कि पाकिस्तान रेस्क्यू टीम जनूबी एशिया की पहली टीम बन गई है जिसने अक़वाम मुत्तहिदा की इंसराक से सर्टिफिकेशन हासिल की। उन्होंने कहा कि जल्द इस्लामाबाद में भी रेस्क्यू 1122 की सर्विस शुरू करने जा रहे हैं, जिससे इस्लामाबाद और गिरदो नवाह के लोग मुस्तफ़ीद होंगे। इससे कबल वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद ने रेस्क्यू एमरजेंसी सर्विसेज अकेडमी में एहलकारों की जानिब से फायर फाइटिंग, वाटर एमरजेंसी, बुलंद इमारत पर चढ़ना, स्काई लिफ्ट और हंगामी हालात के दौरान जान बचाने वाली पेशा वराना तरबियत का अमली मुजाहरा भी देखा। वज़ीर दाखिला ने रेस्क्यू एहलकारों की पेशा वराना तरबियत के आला मेयार को सराहा। तकरीब के आखिर में पाकिस्तान रेस्क्यू टीम की दूसरी सालगिरह का केक भी काटा गया। आसिम नज़ीर, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, लाहौर। नाज़रीन, मामूनी खुसूसी इस्टेब्लिशमेंट शहजाद अरबाब कहते हैं कि CSS इम्तिहान के लिए स्क्रीनिंग टेस्ट को मंजूर कर लिया गया है। इस्लामाबाद में चेयरमैन फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन जाहिद सईद के हमरा न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हुए उन्होंने कहा कि स्क्रीनिंग टेस्ट की वजह से नताइज मुरतब करने में आसानी होगी। इसी बारे में मज़ीद तफसील से आगाह करेंगे समीउल्लाह। मोमन खसूसी बराए इस्टेब्लिशमेंट शहजाद अरबाब का कहना था कि काबीना ने गुज़श्ता इजलास में CSS के लिए स्क्रीनिंग टेस्ट को मंजूर कर लिया है। 2022 से CSS के इम्तिहान में हिस्सा लेने से कबल उम्मीदवारों के लिए स्क्रीनिंग टेस्ट क्लियर करना लाजिम होगा। अभी जो एग्जाम साइकिल है कमीशन का CSS का, वो 20 महीने में ये कंप्लीट होता है। इस स्क्रीनिंग टेस्ट के इंट्रोडक्शन से
ये 12 महीने में आ जाएगा। एक पेपर होगा 200 मार्क्स का और सब्जेक्ट्स वही होंगे जो कंपलसरी सब्जेक्ट्स हैं। इससे एक तो एक क्वालिटी बेहतर होगी और सीरियस कैंडिडेट्स आएंगे और टाइम स्पेंड कम होगा। चेयरमैन फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन जाहिद सईद ने कहा कि स्क्रीनिंग टेस्ट में उम्मीदवारों के लिए पासिंग मार्क्स 33% रखे हैं और उम्मीदवारों को 200 मरूजी सवालात दिए जाएंगे। हमने जो अभी टेंटेटिव डेट रखी है, हम फरवरी के मिडिल में तकरीबन 15 से 20 फरवरी में हम ये MCQ बेस्ड टेस्ट करवाएंगे। ये 200 नंबरों का MCQ बेस्ड टेस्ट होगा। एक कॉपी हम रख लेंगे, एक कॉपी कैंडिडेट अपने साथ ले जाएगा और उसी शाम को जिस दिन इम्तिहान होगा हम जो उसकी की है, जो आंसर्स की, वो हम अपलोड कर देंगे। तो सेम डे हर बच्ची को पता लग जाएगा कि उसने कैसा परफॉर्म किया है। चेयरमैन फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन का कहना था उम्मीदवारों की आसानी के लिए स्क्रीनिंग टेस्ट के मॉडल पेपर्स को FPSC की वेबसाइट पर अपलोड कर दिया जाएगा। समीउल्लाह, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज, इस्लामाबाद। काबीना कमेटी तवानाई का इजलास वजीर मनसूबाबंदी असद उमर की सदारत में इस्लामाबाद में हुआ। कमेटी ने पेट्रोलियम डिवीजन को हिदायत की कि पाकिस्तान ऑयल और गैस सेक्टर के हवाले से पॉलिसी पेश की जाए। कमेटी ने ट्रांसमिशन सिस्टम में रुकावटें दूर करने के मंसूबे की मंजूरी भी दी। इजलास को बताया गया कि जुलाई 2018 में कौमी ग्रिड की सलाहियत 20,211 मेगावाट, अगस्त 2021 में 24,564 मेगावाट थी, जो 2023 में बढ़कर 33,500 मेगावाट हो जाएगी। मामले खुसूसी बराए तखफीफ गुर्बत डॉक्टर सानिया निश्तर कहती हैं कि एहसास का नया प्रोग्राम ला रहे हैं जिसका नाम एहसास राशन है। इस प्रोग्राम से 13 करोड़ लोग मुस्तफीद होंगे। एहसास प्रोग्राम का नया सर्वे किया जा रहा है। जांच पड़ताल के बाद मुस्तहिक लोगों की फहरिस्त जारी की जाएगी। इस्लामाबाद में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में डॉक्टर सानिया निश्तर का कहना था कि हुकूमत महंगाई को कंट्रोल करने के लिए इकदाम कर रही है। यूटिलिटी स्टोर्स के साथ करियाना स्टोर्स भी प्रोग्राम में शामिल होने के अहल होंगे। डॉक्टर सानिया निश्तर का कहना था कि प्रोग्राम इब्तदाई तौर पर 6 माह के लिए तैयार किया गया है, जिसके लिए 120 अरब रुपए का बजट रखा गया है। विफाक का हिस्सा 35%, जबकि 65% हिस्सा सूबाई हुकूमतें देंगी। सिंध और बलूचिस्तान के अलावा पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमतों ने इस प्रोग्राम में शमूलियत के लिए रजामंदी जाहिर की है। मज़ीद खबरें आप मुलाहिजा कर सकेंगे इस ब्रेक के बाद। साथ रहिएगा। सारे बैंक अकाउंट्स की सहूलियात एक अकाउंट में। MCB वन करंट अकाउंट, हर पाकिस्तानी का एक अकाउंट। MCB, बैंक फॉर लाइफ। फिर ना कहना डिस्काउंट नहीं मिला। 11 नवंबर को रात 12 बजते ही कलेक्ट करो सेलर वाउचर्स, बैंक डिस्काउंट वाउचर्स, फायरवर्क वाउचर्स और एंजॉय करो दराज 11-11। बड़ी सेल की बड़ी बचत। वेलकम बैक। मज़ीद खबरों में आपको बताएंगे कि वज़ीर दिफा परवेज़ खटक ने कहा है कि हुकूमत मुल्क में दिफाई पैदावार की सलाहियत को बढ़ाने के लिए खुद इन्हसारी की पॉलिसी पर अमल पैरा है। कराची डॉकयार्ड में पाकिस्तान मैरीटाइम सिक्योरिटी एजेंसी के बेड़े में नई बहरी जहाज PMSS कोलाची की शमूलियत की तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर दिफा ने कहा कि चीन के ताउन से पाकिस्तान शिपयार्ड में बनने वाला ये जहाज दोनों मुल्कों की अजीम दोस्ती की मिसाल है। DG PMSS रियर एडमिरल मोहम्मद शुएब ने बहरी हुदूद में इंसानी और मनशियात की स्मगलिंग की रोकथाम समेत मुल्क के इक्तसादी जोन्स के तहफ़्फ़ुज़ में मैरीटाइम सिक्योरिटी एजेंसी के किरदार के बारे में बताया। कानून और इंसाफ के वफाकी वज़ीर बैरिस्टर फ़रोग़ नसीम से यूरोपीय यूनियन के पार्लिमानी वफ़द ने इस्लामाबाद में मुलाकात की। मुलाकात में पाकिस्तान और यूरोपीय यूनियन के माबैन दो तरफ़ा ताउन के फ़रोग़ पर तबादला ख्याल किया गया। वफ़द से बातचीत करते हुए वज़ीर कानून ने कहा कि पाकिस्तान और यूरोपीय यूनियन के मुश्तरका मकासद हैं। बैरिस्टर फ़रोग़ नसीम ने वफ़द को मकबूजा कश्मीर में इंसान सोज भारतीय मज़ालिम से आगाह किया। उन्होंने बताया कि पाकिस्तान में निज़ाम अदल में मुकम्मल तौर पर इस्लाहात लाई जा रही हैं। इंसदाद असमदरी कानून के बारे में वफ़द को आगाह करते हुए वज़ीर कानून ने कहा कि मुतल्लिक़ा कानून का बिल जल्द पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में पेश कर दिया जाएगा। वज़ीर मुमलिकत इत्तलात और नशरियात फ़र्रुख हबीब ने बिलावल ज़रदारी के बयान पर रद्द अमल देते हुए कहा है कि 13 साल से मुसलसल सिंध में पीपल्स पार्टी की हुकूमत है। हुकूमत सिंध के अवाम को सेहत कार्ड तक न दे सकी और ना ही राशन सपोर्ट प्रोग्राम में सिंध हुकूमत अपना हिस्सा डाल रही है।
اپنے ٹویٹ میں وفاقی وزیر نے کہا کہ پنجاب، خیبر پختونخوا، گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر کی حکومت عوام کو صحت کارڈ دے رہے ہیں۔ اس کے علاوہ راشن سپورٹ پروگرام میں 65% حصہ بھی ڈال رہے ہیں۔ اطلاعات و نشریات کے وزیر مملکت فاروق حبیب نے کہا ہے کہ وزیر اعظم عمران خان ملک میں احساس پروگرام اور اس سے جڑے دیگر فلاحی پروگراموں کو مزید بہتر انداز میں بڑھانا چاہتے ہیں۔ کراچی میں فلاحی ادارے سیلانی ویلفیئر ٹرسٹ کے دفتر کے دورے کے موقع پر گفتگو کرتے ہوئے وزیر مملکت نے کہا کہ بیرونی ممالک میں مقیم پاکستانی کمیونٹی بھی فلاحی کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ حکومت فلاحی کاموں میں نہ صرف ہر ممکن مدد فراہم کرے گی بلکہ ملک کے تمام بڑے شہروں میں لنگر خانے اور احساس پروگرام کے نیٹ ورکنگ بڑھانے کی کوشش کی جائے گی۔ سیلانی ویلفیئر ٹرسٹ کے سربراہ مولانا بشیر فاروقی نے وزیر مملکت فاروق حبیب کو ٹرسٹ کے فلاحی کاموں سے متعلق آگاہ کیا۔ ترجمان دفتر خارجہ کہتے ہیں کہ FATF کو چند ممالک سیاسی بنیادوں پر استعمال کر رہے ہیں۔ FATF پاکستان کی کارکردگی کا اعتراف کر چکی ہے۔ اسلام آباد میں ترجمان دفتر خارجہ میں ہفتہ وار بریفنگ میں بتایا کہ FATF کے سیاسی بنیادوں پر استعمال کے باوجود پاکستان اپنی ذمہ داریاں پوری کرنے کے لیے پرعزم ہے۔ ترجمان نے کہا کہ مقبوضہ کشمیر میں بھارتی مظالم میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے، جہاں گزشتہ مہینے 22 افراد کو شہید کیا گیا۔ مقبوضہ کشمیر میں نئی تحقیقاتی ایجنسی کے قیام پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے ترجمان نے کہا کہ یہ ایجنسی ریاستی عوام کو دبانے کے لیے بنائی گئی ہے۔ ناظرین، یوم شہدائے جموں ہفتے کے روز اس عزم کے ساتھ منایا جائے گا کہ کشمیر کے سپوت حق خود ارادیت کے حصول تک اپنی جدوجہد جاری رکھیں گے۔ کشمیر میڈیا سروس کے مطابق نومبر 1947 میں مہاراجہ ہری سنگھ کے جتھوں، بھارتی فوجیوں اور ہندو دہشت گردوں نے پاکستان ہجرت کرنے والے لاکھوں مسلمانوں کا قتل عام کیا تھا۔ حریت رہنماؤں اور تنظیموں نے اپنے بیانات میں شہدائے جموں کو خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے کہا کہ ان کا خون رائے گاہ نہیں جائے گا۔ کل جماعتی حریت کانفرنس کے جنرل سیکرٹری مولوی بشیر احمد عرفانی نے قابض بھارتی فورسز کی طرف سے مقبوضہ علاقے میں مسلسل محاصرے اور تلاشی کی کارروائیوں کی مذمت کرتے ہوئے افسوس ظاہر کیا کہ اس دوران بے گناہ لوگوں کو وحشیانہ تشدد کا نشانہ بنایا جاتا ہے۔ ڈیموکریٹک فریڈم پارٹی اور نیشنل فرنٹ نے کہا ہے کہ بڑی تعداد میں بھارتی فوجیوں کی تعیناتی مقبوضہ علاقے میں خون ریزی کی بڑی وجہ ہے۔ انہوں نے مزید بھارتی فوجیوں کی تعیناتی کو ریاستی عوام کی حق خود ارادیت کے حصول کی منصفانہ جدوجہد کو دبانے کی مودی کی فسطائی حکومت کی ایک اور کوشش قرار دیا۔ سری نگر میں پارٹی کارکنوں سے خطاب کرتے ہوئے نیشنل کانفرنس کے ایڈیشنل جنرل سیکرٹری ڈاکٹر شیخ مصطفیٰ کمال نے کہا کہ اضافی فورسز کی تعیناتی مودی حکومت کے جموں و کشمیر میں صورتحال کے معمول پر آنے کے دعووں کی نفی ہے۔ نیو یارک میں اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کی 3rd کمیٹی میں ہمارا مشترکہ ایجنڈا کے عنوان سے عالمی ادارے کے سیکرٹری جنرل کی رپورٹ پر غیر رسمی بحث میں خاتون مندوب نے اقوام متحدہ پر زور دیا کہ وہ مقبوضہ جموں و کشمیر میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں پر بھارت سے باز پرس کرے۔ برطانیہ کے شہر گلاسگو میں موسمیاتی تبدیلی کی سربراہی کانفرنس میں بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی کی شرکت کے خلاف سینکڑوں کشمیریوں، پاکستانیوں اور انسانی حقوق کے کارکنوں نے جارج اسکوائر پر احتجاجی مظاہرہ کیا۔ مظاہرہ تحریک کشمیر اسکاٹ لینڈ کی کال پر کیا گیا۔ مظاہرین نے آزادی کے حق میں اور مودی کے خلاف نعرے لگائے۔ احتجاجی مظاہرین نے پلے کارڈز اٹھا رکھے تھے جن پر کشمیری آزادی چاہتے ہیں، کشمیر میں نسل کشی بند کرو، کشمیر میں ریاستی دہشت گردی بند کرو، تمام سیاسی قیدیوں کو رہا کرو اور کشمیر میں قتل عام بند کرو جیسے نعرے درج تھے۔ اس موقع پر مقررین نے کہا کہ مودی کی فسطائی حکومت نازیوں کی طرح ہندوتووں کے نظریے پر یقین رکھتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ فسطائی مودی حکومت نے مقبوضہ کشمیر کو ایک جیل میں تبدیل کر دیا ہے۔ ناظرین، برطانیہ میں خالستان ریفرینڈم نے فیشسٹ ہندو لیڈر نریندر مودی کو چکرا کر رکھ دیا ہے۔ بھارتی وزیر اعظم نے گلاسگو کانفرنس کے موقع پر برطانوی ہم منصب بورس جانسن سے ملاقات کی اور برطانوی حکومت کی طرف سے ریفرینڈم کے انعقاد کی اجازت دینے کا معاملہ اٹھایا۔ ملاقات کا ایجنڈا تجارت اور دو طرفہ تعلقات تھے، لیکن خالستان ریفرینڈم نے مودی کی مت مار کے رکھ دی اور انہوں نے دوسری کوئی بات نہیں کی۔ اس موقع پر طے پایا کہ خالستان ریفرینڈم کے مسئلے پر دونوں ملکوں کے سلامتی کے مشیر ملاقات کریں گے۔ بھارتی سیکرٹری داخلہ نے کہا ہے کہ بھارت اور برطانیہ کے قومی سلامتی کے مشیر رواں ماہ کے آخر میں ملاقات کریں گے، جس میں برطانیہ میں سرگرم خالستان کے رہنماؤں کے بارے میں بات کی جائے گی۔
नाज़रीन, मुल्की मईशत में गुज़श्ता 4 माह में मुस्बत तब्दीलियाँ देखने में आई हैं, जिसके नतीजे में आने वाले दिनों में रोज़गार में इजाफा होगा। वज़ारत ख़ज़ाना के तर्जुमान मुज़म्मिल असलम ने अपने बयान में कहा कि बरआमदात, टैक्स महसूलात, ज़राई पैदावार समेत तमाम इक़्तिसादी अशारियों में मुसलसल बेहतरी का रुझान है और लोगों की आमदनी बढ़ रही है। तफसील जानते हैं राहिल अंसार से। वजारत खजाना के तर्जुमान मुजम्मल असलम ने अपने वीडियो बयान में कहा कि आलमी सतह पर खाने पीने की कीमतों में इजाफा देखने में आया है, लेकिन मुल्की सतह पर रवां साल फसलों की पैदावार में बेहतरी से अशाए खुरोनोश की कीमतों में इस्तेहकाम आएगा। कोरोना के बाद की सूरत हाल की वजह से पूरी दुनिया में एक आलमी महंगाई है। हमारी कपास की फसल वो बहुत बुरी हो गई थी पिछले सालों में। अभी जो डाटा आया है वो 4 महीने में बहुत ही मुस्बत डाटा है। 81% जो है हमारी जो है कपास की फसल में जो है इजाफा हुआ है और 6.2 मिलियन टन है। अच्छी खबर ये है कि अब चीनी की हमारी रिकॉर्ड फसल आ रही है, चीनी की कीमत नीचे हो जाएगी। इसके साथ साथ हमारी जो है जो फूड की प्राइसेस हैं उसमें कंट्रोल होना शुरू हो गया है। उन्होंने कहा कि आमदन में बेहतरी के बायस टैक्स में इजाफा हुआ है। बरामदात की मद में रवां साल खासी तेजी देखने में आई है। बरामदात पिछले 8 सालों में पाकिस्तान की जो है बहुत बुरी गई थी। अब उसमें जो है एक बहुत बड़ी तेज़ी आ चुकी हुई है। सिर्फ अक्टूबर के महीने में 17.5% हमारी बरामदात बढ़ी है, जुलाई से अक्टूबर में 25%। और जिस रफ्तार से चल रहे पाकिस्तान की तारीख में पहली दफ़ा हम $30 अरब इस साल बरामदात का हदफ हासिल कर लेंगे। फिर दूसरी चीज़ टेक्सटाइल एक्सपोर्ट्स। टेक्सटाइल अपने रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड तोड़े जा रही है। सिर्फ 4 माह में $6 अरब तक पहुँच चुकी हुई है और ये तारीख में कभी नहीं देखी। हमारी आमदनी बढ़ी, उसकी वजह से भी टैक्सेस बढ़े हैं। सिर्फ 4 माह में 32% से इनकम टैक्स बढ़ा है और 151 अरब रुपए जो है इजाफी इनकम टैक्स मिला है पिछले साल के मुकाबले में। मुजम्मल असलम ने दरमियानी आमदनी वाले अफराद के लिए खुशखबरी देते हुए कहा कि नवंबर 2020 से फरवरी 2021 के माहाना यूनिट से अजाफी बिजली इस्तेमाल करने पर फी यूनिट रायत दी जाएगी। राहिल अंसार, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज, इस्लामाबाद। दुनिया भर में ईंधन की कीमतों में मुसलसल इजाफे के बावजूद महंगाई पर काबू पाने के हुकूमती इक़दामात की बदौलत पाकिस्तान में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमत खित्ते के ममालिक के मुकाबले में अब भी कम है। तफसील बताएंगे हसन तारिक बट। खित्ते के दूसरे मुल्कों में दस्तयाब पेट्रोल की कीमत को पाकिस्तानी करेंसी में बदला जाए तो भारत में पेट्रोल 250 रुपए फी लीटर तक फरोख्त हो रहा है। चीन में पेट्रोल की कीमत 215 रुपए फी लीटर के करीब पहुंच चुकी है। श्रीलंका में पेट्रोल 154 रुपए 70 पैसे फी लीटर फरोख्त हो रहा है। हांगकांग में आसमान से बातें करती पेट्रोल की कीमत 447 रुपए फी लीटर से तजावज कर चुकी है। बरतानिया में पेट्रोल की कीमत 10 साल की बुलंद 3 सतह 333 रुपए फी लीटर पर पहुंच गई है। जर्मनी में 1 लीटर पेट्रोल की कीमत 329 रुपए 70 पैसे है। कनाडा में पेट्रोल 226 रुपए 56 पैसे फी लीटर दस्तयाब है। कोरोना वबा से बैनुल अक़वामी सप्लाई चेन मुतासर होने के बाद जहां आलमी सतह पर अफरात ज़र में इजाफा हो गया है, वहीं पाकिस्तान में पेट्रोलियम मसनूआत पर आयद टैक्सेस में कमी और रोजमर्रा अशिया पर सब्सिडी से आवाम को रिलीफ फराहम की जा रही है। हसन तारिक बट, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज, इस्लामाबाद। नाज़रीन, वज़ीर आज़म इमरान खान की जानिब से महंगाई से मुतासर गरीब अफराद के लिए दिए जाने वाले तारीखी रिलीफ पैकेज को कराची के मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद ने सराहा है। मज़ीद तफसील कराची से हमारे नुमाइंदे अली असगर अरबाब की रिपोर्ट में। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की जानिब से दिए जाने वाले तारीखी रिलीफ पैकेज से महंगाई से मुतासर अफराद और मुल्क के गरीब आवाम को सहारा मिलेगा, जो रियायत पर आटा, घी और दालें खरीद कर सकेंगे। वज़ीर-ए-आज़म के रिलीफ पैकेज को कराची के मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद ने सराहा है। सबसे ज़्यादा अफेक्टिव क्लास थी, उसको जाके डायरेक्टली 6 महीने के लिए रिलीफ दालों में, आटे में और घी पे मिल रही है, तो ये बहुत बड़ा रिलीफ है। और इतना सिंसियर बंदा इस मुल्क को मिला, ये हमारी खुश नसीबी है। हम किसी तरह से हर जगह से उसको कामयाब करें। इमरान खान का ये बहुत ही अच्छा इक़दाम है, तो इसमें जो बेसिकली निचला तबका है उसको रिलीफ दिया गया। वज़ीर-ए-आज़म के इस पैकेज पर अमल दरामद के दौरान शफाफत को यकीनी बनाने के लिए एहसास प्रोग्राम का डेटा इस्तेमाल किया गया है, जिससे गरीब अफराद को रिलीफ मिल सकेगा। अली असगर अरबाब, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, कराची।
मुल्क भर में कोरोना केसेस में खातिर खा कमी आ रही है। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान मुस्बत केसेस की शरह 1.32% रही, जबकि मजीद 19 अफराद जान की बाजी हार गए। मजीद 580 अफराद में वायरस की तस्दीक हुई है, जबकि 1247 अफराद की हालत तशवीशनाक है। मनसूबाबंदी के वफाकी वजीर असद उमर कहते हैं कि कौमी सतह पर 48% अफराद की वैक्सीनेशन का अमल मुकम्मल हो चुका है। असद उमर ने अपने ट्विटर पैगाम में कहा कि पंजाब की 52% आबादी को वैक्सीन की एक खुराक दी जा चुकी है। सिंध की 40% आबादी ने कोरोना वैक्सीन लगवाई है। वफाकी वजीर असद उमर ने बताया कि खैबर पख्तूनख्वा में 48%, बलूचिस्तान में 17%, गिलगित बल्तिस्तान में 54% अफराद वैक्सीन लगवा चुके हैं। इस्लामाबाद में 87%, जबकि आज़ाद कश्मीर में 59% लोग वैक्सीन लगवा चुके हैं। अमरीकी नाज़िमुल उमूर विलियम ए स्टेनियर ने कहा है कि अमरीका कोरोना के खात्मे की कोशिशों में पाकिस्तान के साथ है। इस्लामाबाद में EPI सेंटर के दौरे के मौके पर अमरीकी नाज़िमुल उमूर ने कहा कि अमरीका पाकिस्तान को 2 करोड़ 23 लाख इंसदादे कोरोना वैक्सीन बतौर इमदाद दे चुका है। गुज़श्ता हफ्ते में फाइजर वैक्सीन की 70 लाख से ज़ायद खुराकें पाकिस्तान पहुंची हैं। उन्होंने कहा कि अमरीका सेहत के शोबे में पाकिस्तान से ताउन जारी रखेगा। बात करेंगे डेंगू की सूरत हाल की, तो आपको बताएंगे कि लाहौर में डेंगू के मरीजों की तादाद 2938 हो चुकी है। 1904 अफराद सरकारी अस्पतालों, जबकि 1034 मरीज निजी अस्पतालों में ज़ेर इलाज हैं। डेंगू के मरीजों के लिए इलाज मालजे की बेहतरीन सहूलतों के साथ साथ इजाफी बिस्तरों की फराहमी भी यकीनी बनाई गई है। इस वक्त डेंगू के मरीजों के लिए मुख्तलिफ अस्पतालों में 1400 से ज़ायद इजाफी बिस्तर मुख्तस किए गए हैं। सूबाई वज़ीर सेहत डॉक्टर यास्मीन राशिद ने तमाम अस्पतालों में डेंगू मर्ज़ के इलाज के लिए डॉक्टर्स, अद्वियात और दीगर तिब्बी सहूलतें यकीनी बनाने की हिदायत की है। वफाकी वज़ीर सैयद फ़ख्र इमाम ने कहा है कि मोहसिन पाकिस्तान डॉक्टर अब्दुल कदीर खान ने पाकिस्तान का दिफा नाकाबिल तस्खीर बना दिया। इस सिलसिले में उनकी खिदमात नाकाबिल फरामोश हैं। निजी यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद में डॉक्टर अब्दुल कदीर खान ताज़ियती रेफरेंस से खिताब करते हुए वफाकी वज़ीर ने कहा कि डॉक्टर अब्दुल कदीर खान कौम के हीरो हैं। जौहरी मैदान में उनकी खिदमात की वजह से पाकिस्तान खित्ते में मजबूत हुआ। वफाकी वज़ीर ने कहा कि डॉक्टर अब्दुल कदीर खान पाकिस्तानी नौजवानों के रोल मॉडल हैं। वज़ीर रेलवे आज़म खान सवाती ने कहा है कि मानसेरा के सियाहती मकाम वादी सरन में सियाहत के फ़रोग़ के लिए सरन डेवलपमेंट अथॉरिटी के क़याम को अमल में लाया जा रहा है। मानसेरा में मकामी अमायदीन और कारकुनों से मुलाकात में उन्होंने कहा कि आने वाली नस्लों के बेहतर मुस्तक़बिल के लिए आलूदगी से पाक माहौल की फराहमी के लिए जंगलात का तहफ़्फ़ुज़ हमारी कौमी ज़िम्मेदारी है। वज़ीर निजकारी मोहम्मद मियां सुमरो की ज़ेर सदारत इस्लामाबाद में होने वाले इजलास में निजकारी प्रोग्राम में होने वाली पेशरफ्त का जायजा लिया गया। इजलास को हैवी इलेक्ट्रिकल कॉम्प्लेक्स, हाउस बिल्डिंग फाइनेंस कॉरपोरेशन और दीगर इदारों के निजकारी और पाकिस्तान स्टील मिल्स की बहाली के लिए प्रोग्राम के मुताबिक पेशरफ्त पर ब्रीफिंग दी गई। वज़ीर मवासलात मुराद सईद कहते हैं कि साबिक इंस्पेक्टर जनरल कलीम इमाम की क़यादत में मोटरवेज पुलिस ने हमेशा मुसाफिरों की जान माल के तहफ़्फ़ुज़ और उन्हें दौरान सफ़र हर मुमकिन सहूलियात की फराहमी को यकीनी बनाया है। उनकी ग्रां कदर खिदमात हमेशा याद रखी जाएंगी। अलविदाई तकरीब के दौरान वफाकी वज़ीर का कहना था कि नए इंस्पेक्टर जनरल मोटरवेज पुलिस इनाम गनी मंझे हुए पुलिस ऑफिसर हैं। मोटरवेज पुलिस की रिवायात कायम रखने में ज़रूर किरदार अदा करेंगे। नाज़रीन, पाकिस्तान में बेलारूस के सफ़ीर आंद्रे मेटिलिस्टा ने इस्लामाबाद में हाउसिंग और तामीरात के वज़ीर मुमलिकत शब्बीर अली कुरैशी से मुलाकात की। इस मौके पर पाक बेलारूस ताल्लुकात, तामीराती शोबे और कम कीमत लागत वाले मकानात की तामीर में दो तरफ़ा ताउन को फ़रोग़ देने समेत बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। वफाकी सेक्रेटरी इमरान ज़ेब ने बेलारूस के सफ़ीर को वज़ारत हाउसिंग और तामीरात की जानिब से शुरू की गई बुलंदबाला इमारात और दीगर जारी मनसूबों पर ब्रीफिंग दी। बेलारूस के सफ़ीर तामीराती मनसूबों पर गहरी दिलचस्पी का इजहार कर चुके हैं। पाकिस्तान टेलीविजन के मुख्तलिफ शोबों से वाबस्ता प्रोफेशनल्स को मैनेजमेंट के असूलों के बारे में PTV अकेडमी इस्लामाबाद में खुसूसी कोर्स हुआ, जिसका एहतमाम PTV के ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट ने किया था। PTV अकेडमी ग्लोबल, होम, स्पोर्ट्स और हेडक्वार्टर्स के एडमिन, पर्सनल और ह्यूमन रिसोर्स समेत मुख्तलिफ शोबों में काम करने वाले प्रोफेशनल्स ने बड़ी तादाद में शिरकत की। PTV अकेडमी इस्लामाबाद में होने वाले एक रोज़ा तरबियती सेशन में इंतज़ामी उमूर के माहिर रिटायर्ड मेजर मोहम्मद इरशाद आतिफ ने PTV से वाबस्ता प्रोफेशनल्स को मैनेजमेंट के असूलों के बारे में तफसील से आगाह किया।
چیف ہیومن ریسورس آفیسر طاہر مشتاق نے اپنے آن لائن خطاب میں کہا کہ پی ٹی وی اپنے ہیومن ریسورس کو جدید دور کے تقاضوں سے ہم آہنگ کرنے کے لیے ان کی تربیت پر خصوصی توجہ دے رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ پی ٹی وی کے ہیومن ریسورس کی تربیت کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ افراد، ادارہ اور اہداف یہ تینوں ایک ساتھ بڑھیں اور ترقی کریں۔ السلام علیکم، میں ہوں قاسم علی۔ ناظرین، آپ کو آگاہ کریں کہ محکمہ موسمیات کہتا ہے کہ آئندہ 24 گھنٹے کے دوران ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم خشک رہے گا، تاہم اس دوران گلگت بلتستان، کشمیر اور بالائی خیبر پختونخوا میں چند اضلاع میں گرج چمک کے ساتھ بارش، جبکہ پہاڑوں پر ہلکی برفباری کا امکان ظاہر کیا گیا ہے۔